Why is that? Why no practice? Nan. Nan means grandmother. Okay. Every week, this guy, Jimmy Cullum, on Sunday talks to his mother and his nan. And why? Because they want to hear about his week. They like hearing about his week. Okay, let's see. Let's continue with the second text. Shilpa Shetty text. Indian film actress and model Shilpa Shetty has homes. She doesn't have a home. She has homes, plural. Homes is the plural of home. She has homes in Mumbai and England. Okay, she doesn't live in one place. She has homes in Mumbai and England. She enjoys takeaway pizza. What pizza? What kind of pizza is called takeaway pizza? Okay. When you buy some food from the shop and you bring them to your place, to your home, to your office, to a park, you buy food and you bring the food to your place, then we call that food takeaway. So takeaway samosas means you buy the samosas and you bring them to your place. Then now you can use the phrase takeaway samosa. Okay. It means you're not eating them at the shop. You go to Domino's, you buy some pizza and you sit there and eat. Then that's not takeaway pizza. But you buy the pizza and you bring them to your place, to your office, to your workplace, to a park, to your home, somewhere, please come. Then that is takeaway pizza. Takeaway pizza is clear? Indian film actress and model Shilpa Shetty has homes in Mumbai and England. She enjoys takeaway pizza, going to garden centers, takeaway mungfali peanuts, right? Okay. She enjoys takeaway pizza. Takeaway matlab samajh gaye? Okay. You are not eating them where you bought them. Okay, you're eating them at your place. Takeaway pizza, going to garden centers. Garden center means garden center is nursery in our language. If you have a garden, then where do you go to buy your plants? Where do you go to buy plants? You go to nurseries, right? There are some nurseries on the highway. There is a nursery in near at Khandakpe, near the old Anurag cinema, right? Nursery, a place where you can go and buy some plants, right? Garden centers, another word for nursery. She enjoys going to garden centers. Why does she go there? To buy some new plants for her garden, maybe, okay? And she also enjoys playing cards at weekends. So that's common. They both enjoy playing cards. Okay. They both. They both. Nice to new. कुछ कुछ लोग के लिए नए साउंड्स जैसे होते हैं. They both. जैसे सुहानी के लिए ये आवाज ही मुश्किल है. बोलो बेटा. They both. और जब तक तुम ये लिप्स सब लोग को ये बता रहा हूँ. जो कुछ लोग के लिए आवाज ही मुश्किल है. मतलब मीनिंग छोड़ दो. ये आवाज ही मुश्किल है. मतलब आवाज नहीं निकलती है मुंह से. They both. है ना. इसका मतलब हम लोग दो लोगों की बात कर रहे हैं. कौन से दो लोगों की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट जेमी एंड
शिल्पा, they both like playing cards. Okay, तो आवाज निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप जो एकदम शांत होकर पढ़ते हैं, मेरे सेंटेंसेस के, मेरे वर्ड्स को रिपीट करना इज गोइंग टू बी मोर फ्रूटफुल। लेकिन रिपीट करने के चक्कर में ये बंद ना हो जाए। दो चीजें होती भाई, कुछ लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, कुछ लोग ध्यान से सुनते हैं और रिपीट करते हैं, और कुछ लोग बस रिपीट करते हैं, ध्यान से नहीं सुनते हैं। हाँ, ध्यान नहीं होता कि क्या बोल रहे, बस आवाज रिपीट कर देते हैं, सोचते नहीं उसके बारे में। ये भी बिना इन्वॉल्व किए नहीं सीख सकते, इसको इन्वॉल्व करना है। ये इन्वॉल्व हो ना हो बात की चीज है, बट इसको तो इन्वॉल्व करना है। दे बोथ लाइक प्लेइंग कार्ड्स, राइट। शिल्पा सेज, शिल्पा सेज, से क्यों नहीं? शिल्पा से, सेज क्यों? ही शी इट के साथ एस लगाना पड़ता है, ये आपने बताया। ऐसे बोलो, आपने बताया ऐसा करना है तो करना है, ठीक है। एक बात बता दूं पहले आगे बढ़ने से, अक्सर लोगों के मन में आता है ये क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ठीक है। लैंग्वेज कोई लैब में बैठ के बनाया गया चीज नहीं है दोस्तों, ठीक है। बस ऐसे ही लोग इवॉल्व हुए हैं बोलते हुए, यानी कि ऐसे ही आया है। हिंदी जैसे हम लोग बोल रहे हैं, अगर आज से 1000 साल पहले चले जाए भारत में, इसी जगह बैठे हो, इसी एरिया में, बिल्डिंग तो नहीं होगी 1000 साल पहले, मान लो ये जगह पे होते, आप यहाँ खड़े होते 1000 साल पहले, अब जो आप भाषा आज बोलते हो, बोलते ना, तो लोग आपको ऐसे देखते हैं, कौन है, कहाँ से आया है। 1000 साल पहले ये भाषा जो भी बोल रहे हो यहाँ नहीं बोली जा रही। एग्जैक्टली, यहाँ 1000 साल पहले जो लोग रह रहे होंगे वो कुछ और बोल रहे होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हमारे पास डिटेल्स नहीं है इस चीज के कि कैसे कैसे भाषा बनी। वी डोंट नो, मतलब वी डोंट नो, ह्यूमंस डोंट नो। जैसे हम लोग ये नहीं जानते कि हम लोग कहाँ से आए। कुछ लोग मानते हैं भगवान ने बनाया हमें, कुछ लोग मानते हैं कि हम लोग एवोल्यूशन के रिजल्ट हैं। तो ये मानने की बात हो गई, हर कोई अपना अपना क्लेम करता रहता है। बट अगेन, चांद यहाँ से कितना दूर, इस पर कोई डिबेट नहीं है। देयर इज अ डिस्टेंस दैट वी हैव मेजर्ड, राइट। लेकिन इस बात पे तो डिबेट है कि हम लोग कैसे बने, क्यों बने हैं, कोई पर्पस है या ऐसी है, राइट। तो देयर इज ऑलवेज अ डिबेट, फाइन। तो वैसे ही देयर इज नो क्लियर आंसर हाउ लैंग्वेजेस हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। वी डोंट नो फॉर श्योर, देयर इज अ डिबेट ऑन दिस। लोग बातें करते हैं कि ये हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। तो बेटा इसमें क्या है कि हर चीज के पीछे कोई सॉलिड रीजन मिले जरूरी नहीं। हाँ, कुछ स्मार्ट लोगों ने गौर किए दूसरे की भाषाओं पे कि वो ऐसे 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 कर रहे हैं, तो वो चीजें हम लोग आपको बता सकते हैं। जैसे हम लोगों ने गौर की है कि अंग्रेज जब भी इंग्लिश बोलते हैं, तो वो जब भी ही शीट बोलते हैं तो एस लगा देते हैं वर्ब में। ये चीज हम लोगों ने गौर की है। तो हम लोग जब सीख रहे होते हैं तो हम ये बात बताते हैं आपको, ताकि आप भी करें और इंग्लिश जैसे साउंड करे। कोई हिंदी सीख रहा हो और वो बोले मैं जाता है या मैं जाते हैं, तो आप बोलेंगे यार हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। बस इतना ही बोल पाओगे आप उसको करेक्शन करने के लिए। या आप ऐसे बोलोगे ये ऐसे नहीं होता है, मैं जाता हूं होता है। अब वो पूछे क्यों, उसने फट से सवाल डाक दिया, क्यों होता है ऐसा, मैं जाता हूं क्यों बोलते हो? आपके पास क्या जवाब? कोई जवाब है दोस्तों कि मैं जाता है क्यों नहीं बोलते हैं, मैं जाता हूं क्यों बोलते हैं? बताइए, कोई जवाब है किसी के पास? कुछ नहीं, बस बस यही से ही हम लोग की भाषा ऐसी इवॉल्व हुई है कि मैं बोलते हैं तो जा। तो कोई हिंदी सीखने वाला अपनी एनर्जी इस बात पे वेस्ट करे कि जाता हूं क्यों होता है, तो वो सही डायरेक्शन में एनर्जी खर्च कर रहा है या गलत डायरेक्शन में, मतलब सही में वेस्ट कर रहा है। वो आगे पूछे अच्छा मैं जाता हूं और तुम, अगर ये पूछते तो ज्यादा उसका एनर्जी सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ, ओके ओके, और तुम जाते हो, तुम जाते हो, अच्छा तुम जाते हो, तो वो सही डायरेक्शन में, क्योंकि वो आगे बढ़ गया। अब वो हिंदी में थोड़ा बेहतर हो गया, राइट। तो आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में इंग्लिश में खर्च हो, इसके लिए जरूरी है कि आप मैं जो बोलूं उसको समझें, और क्या अच्छा ऐसे बोलते हैं, बोलो इंग्लिश, हम भी ऐसे ही करेंगे। इसका ये मतलब होता है, ओके हम समझ गए, इसका ये मतलब होता है। तो चूंकि आपने अब तक जितने भी इंग्लिश क्लासेस किए होंगे बचपन से, उन लोगों ने कुछ बातें आपको दिमाग में डाली होंगी, उसका कुछ असर हुआ होगा आप पे, और आप एकदम से खराब स्थिति में होंगे। मेरी प्यारी सुहानी, ठीक है ना, ये बहुत परेशान थी। कल मुझे पता चला
इनकी एक परेशानी के बारे में अब बात करना चाहेंगे इसके बारे में सुहानी, बताइए। जब बताइए, लोगों को बताइए अपनी परेशानी। ये ख्याल क्यों आया इसके दिमाग में, जहां डज यूज हो सकता है वहां इज यूज हो सकता है। और ये इसके लेकर कितनी स्ट्रगल की, यूट्यूब वीडियोस देख रही हैं, दीदी से बात करी, भैया से बात करी है कि सर ने जो डज बताया वहां इज क्यों नहीं लगा सकते। हालांकि इसका आंसर मैंने दिया है, अगर आप लोग को कोई बता सके तो। ये कह रही इज का ही नहीं लगा सकते। का सीधा जवाब ये है, इज बी वर्ब का फॉर्म। इज किसका फॉर्म है, और बी वर्ब और दूसरे वर्ब एक साथ कहाँ रखते रहते हैं। आई एम गो टू स्कूल, हाँ बचपन में आदत पड़ गई है, इस वजह से आपको ये नेचुरल लग रहा है, तो मैं कुछ नहीं करता। कुछ बच्चे होंगे जिनको आई एम गो टू स्कूल सही लगता है अभी भी। क्या सही है? अच्छा, और खाली गो बोलना हो तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। मैं स्कूल, इंग्लिश, आई गो टू स्कूल के आई एम गो टू स्कूल। बस ये दिमाग में होना चाहिए। वैसे ही मेरा भाई स्कूल जाता है, माई ब्रदर। और कुछ लोग पढ़ते हैं माई ब्रदर इज गो टू स्कूल। बस समझ में आई, उनके दिमाग में बैठा माई ब्रदर इज गो टू स्कूल। और ये क्यों बैठा है, क्योंकि सबसे पहला लेसन क्या मिला था, एम इज आर। अब वो लगाते रहते हैं एम इज आर। उनको पता था, उनकी, मैं आपको बता दूं कि उनकी प्रॉब्लम की वजह, उन्हें बताया गया एम मतलब हूं। उनको ये नहीं बताया गया एम एक वर्ब है, ठीक है, उसकी जरूरत जहां पड़ेगी वहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। उनको बताया गया एम मतलब हूं। अब वो सुनते हैं मैं स्कूल जाता हूं, तो हूं है ना भाई, तो आई एम तो होगा ना, और जाना का गो होता है ना, तो आई एम गो टू स्कूल। क्या गलत है वो अपने लॉजिक से, जो आपको, जो आपने बताया उनको, उस हिसाब से वो सही है। तो बताने वाले की खराबी है। मैं फिर से बताता हूँ ये बात, वो जिसने एम मतलब हूं पढ़ाया और इस मतलब है भी बताया था आपको बचपन में, तो आप नेचुरली लॉजिकली पहुंची, मेरा भाई स्कूल जाता है तो इज तो आएगा, तो माई ब्रदर इज जाना का गो, माई ब्रदर इज गो टू स्कूल। लेकिन ऐसे नहीं होता। मेरा भाई स्कूल जाता है, इसमें वर्ब जाना है, और जाना का इंग्लिश गो होता है, तो माई ब्रदर गोज। जब माई ब्रदर, ही शी इट सब्जेक्ट हो, तो वर्ब में एस लगा देते हैं। अब जो मैं बातें बोल रहा हूं, सिर्फ इतनी बातें अगर बचपन से सुने होते तो कुछ ख्याल ही नहीं आता उल्टा पुल्टा। माई ब्रदर गोज टू स्कूल। अब जब गोज टू स्कूल है और नहीं जाता है, तो मैं फिर से, जैसे गोज ही गो ही वर्ब है ना, उसी को नेगेटिव करना है। तो गोज का नेगेटिव क्या होता है सुहानी, गोज का नेगेटिव क्या होता है बेटा, डजंट गो। यही इंग्लिश बचपन से सिखाया जाता है आपको कि गो का नेगेटिव डोंट गो, और गोज का नेगेटिव कुछ ख्याल ही नहीं आता इसके अलावा। लेकिन आपको पहले ही दिन पढ़ाया जाता है इज मतलब है। मैंने आपको इस मतलब है पढ़ाया नहीं, उस बात खत्म हो गई। क्योंकि है तो हम हर सेंटेंस में बोलते हैं, तो क्या हर जगह हम है लगाते चले, इज लगाते चले। जैसे उसने खाना खा लिया है, फिर इस लगा दें। तो ये है को इस पढ़ाने वाले और हूं को एम पढ़ाने वाले, यही सारी प्रॉब्लम के जड़ में है। आपके अगर भाई बहन पढ़ाई कर रहे कहीं भी, और उनको पढ़ाया जा रहा है इस मतलब है, एम मतलब हूं, तो आप मान के चलिए कि आगे उनको भी यही समस्याएं आने वाली हैं। तो जो टीचर एम मतलब हूं पढ़ा दे, इस मतलब है, उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की है, आपका प्रॉब्लम क्रिएट करा है, जो बाद में बड़ा प्रॉब्लम होगा। उन्होंने छोटा सा इन्फेक्शन डाल दिया आपके दिमाग में, वो इन्फेक्शन बड़ा होने वाला है अभी। जिसने भी पढ़ा दिया आपको क्या, इस मतलब है, क्योंकि आपका दिमाग जब भी है देखेगा, इस सोचेगा दोस्त। यू कांट लर्न दैट वे। मैं एक टीचर हूं, इसमें होना वर्ब है, क्या वर्ब है, और होना का इंग्लिश बी होता है, और बी के तीन फॉर्म्स होते हैं, इज एम आर। आई के साथ अगर होना वर्ब लगाना है तो आई का एम फॉर्म, बी का एम फॉर्म लगता है, अगर होना वर्ब है।
मैं बोलना चाहता हूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं वहां ईट वर्ब क्यों यूज करूं? कर सकता हूं क्या? वहां सिंग वर्ब क्यों यूज करूं? एक वर्ब अपने मीनिंग की वजह से आएगा ना। तो जब मैं बोलता हूं मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहाँ खेलना वर्ब है, ना कि सिंग, ना कि ईट, ना कि स्लीप, प्ले वर्ब है। राइट? वैसे ही मैं एक डॉक्टर हूं, इसमें वर्ब क्या है? होना। इसमें वर्ब क्या है? वो 15 साल का है, इसमें वर्ब क्या है? होना। इसीलिए आप होना वर्ब है वो। और जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको बचपन ये बातें बताई जाए तो बहुत आसान हो जाए। वो 15 साल का है, तो होना वर्ब है। होना वर्ब में बी वर्ब होता है होना का इंग्लिश, और उसके कितने फॉर्म्स होते हैं? और वो 15 साल का है, वो के लिए तीनों में से कौन सा यूज करना होता है? तीन फॉर्म में से। हाँ, तो ये कर लेंगे। ही इज 15 years old। फिर सुनिए, मेरी एक बहन है, इसमें वर्ब क्या है? इसमें होना वर्ब नहीं है, इसमें हैव वर्ब है। मेरी एक बहन है, इसमें होना वर्ब नहीं है, बी वर्ब नहीं है इसमें। मेरी एक बहन है, इंग्लिश में बोलने के लिए इसको हैव वर्ब की जरूरत पड़ती है। और आप बोलते हैं आई हैव अ सिस्टर। अब ये अलग अलग भाषाएं हैं, थोड़ी सी समझ दिखानी पड़ेगी। अगर आप स्पेनिश सीख रहे होते तो एक सरप्राइजिंग चीज सीखते। बताता हूं आपको। जैसे आप वहां बताना चाहते कि मेरी एक बहन है, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, तो वहां भी आपको बताया जाता है कि हैव वर्ब यूज करना है। स्पेनिश में हैव वर्ब थोड़ा दूसरे अलग भाषा है, तो आवाज बदल जाएगी ना। तो वहां उसको ऐसे बोलना पड़ता है। टेंगो मतलब आई हैव। ठीक है? टेंगो मतलब आई हैव। टेंगो un hermano, I have a brother। Tengo una hermana, I have a sister। ठीक है? टेंगो से बोलते हैं। हैव भी वर्ब है। हैव तो साउंड है, कैसा लगता है? टेंगो। आई हैव ए सिस्टर, टेंगो उना hermana। आई हैव ए फ्रेंड, टेंगो un amigo। मेरा एक दोस्त है। अब सबसे सरप्राइजिंग ये होगा कि मैं 10 साल का हूं या 30 साल का हूं। मैं 30 साल का हूं। ठीक है? अब समझे, हिंदी में तो ये बी वर्ब से बोलते हैं, मैं 30 साल का हूं। इंग्लिश में भी बी वर्ब से बोलते हैं, आई एम 30 years old। लेकिन स्पेनिश में ये बात कि मैं 30 साल का हूं, हैव से बोलते हैं स्पेनिश में। हैव से बोलते हैं वहां स्पेनिश में। और वो बोलते हैं टेंगो 30 años। मैं 30 साल का हूं। वो कैसे बोलते हैं? टेंगो 30 años। जो लोग स्पेनिश अपनी मदर टंग के तौर पे बोलते हैं, वो उनको ये आसान लगता है, कुछ उसमें अजीब नहीं लगता। बोलते हैं टेंगो 30 años, हम 30 साल के हैं। वो ऐसे ही बताते हैं आपको, ट्रेंतो टेंगो 30 años। लेकिन जब वो इंग्लिश सीखते हैं तो आई एम 30 years नहीं बोल पाते आसानी से। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि वो कैसे बोलते हैं? टेंगो। और टेंगो का मतलब क्या सीखते हैं? हैव। तो जब वो इंग्लिश शुरू शुरू में सीखते हैं, तो उनकी आदत होती है बोलने की आई हैव 15 years। इंस्टेड ऑफ आई एम 15 years ओल्ड बोलने की जगह वो बोलते हैं आई हैव 15 years। कल जो मुहतरमा थी ना, उनकी ये परेशानी कॉमन होगी शुरुआत में। वो बोलती होंगी आई हैव, उसके बाद नंबर बोलती होंगी एज का। आपने ऐसी कभी गलती की है बचपन से आज तक? कभी गलती की? व्हाई नॉट? जो पूरे स्पेनिश लोग, जितने भी स्पेनिश बोलने वाले हैं, वो सब इंग्लिश सीखते समय ये गलती जरूर करते हैं, और आप ये कभी नहीं करते हो। आप में से किसी ने बचपन से आज तक कभी ये गलती की है? आई हैव 5 years old, आई हैव 10 years old किया हो आपने? वजह साफ है कि जहां आपकी मदर टंग जो वर्ब यूज करती है, आप नई भाषा सीखते समय वही वर्ब यूज करना चाहते हैं, आदत पड़ जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाते हैं कि दूसरी भाषा में कुछ और होना चाहिए। तो जो स्पेनिश बोलने वाले हैं, वो जब शुरू करते हैं तो वो बोलते हैं टेंगो 30 años। लेकिन जब उनकी स्पेनिश थोड़ी, इंग्लिश थोड़ी बेहतर हो जाती है, तो बोलने लग जाते हैं आई एम 30 years old। लेकिन वो शुरू कहाँ करते हैं? हाँ, क्योंकि उनको उनके स्पेनिश में टेंगो बोलने की आदत है। तो आपकी हिंदी में जो आपको बोलने की आदत है, वो आपको इंग्लिश में इन्फ्लुएंस करेगी।
वहां तक मैं समझता हूँ, वो नेचुरल है वो चीज। उसी को करेक्ट करने के लिए आपको एक टीचर की जरूरत होती है। आप लोग जो हिंदी बोलते हो उसकी इंग्लिश जब करते हो तो ऑफ कोर्स। और मैं आपको बताऊं फर्क फर्क। आपने कभी बोला है माई आई हैव अ बिग हाउस की जगह आपने कभी बोला आई हैव अ हाउस बिग? ये गलती कभी हुई आपसे? कभी नहीं हुई है गलती। आई हैव अ हाउस बिग कभी नहीं बोला है। आई हैव अ टीचर नाइस कभी नहीं बोला है। लेकिन स्पेनिश लोगों से ये गलती अक्सर होती है शुरुआत में। बोले क्यों, वो ऐसे गलती क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी मदर टंग में यानी स्पेनिश में यही ऑर्डर नेचुरल है। वो बोलते हैं टेंगो una casa grande। तो वो बोलते हैं आई हैव अ बिग हाउस, लेकिन वो बोलते हैं una casa grande। una casa, casa is house, grande is big, tengo una casa grande। आई हैव अ हाउस बिग, बिग आके ना बोल रहे वो ग्रांडे। तो वो जब इंग्लिश बोलते हैं वही ऑर्डर को रिपीट कर देते हैं शुरू शुरू में। आदत नहीं होती इंग्लिश की, तो वो वही स्पेनिश वाली आदत टेक ओवर करती है और वो बोलते हैं आई हैव अ हाउस बिग। तो हम लोग उनको बार बार करेक्ट करेंगे, इंग्लिश टीचर उनके, बेटा ऐसे नहीं ऐसे। तो जिनकी दिमाग जैसी होगी वो धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे। इंग्लिश में उनको बोलना है बिग हाउस, लेकिन स्पेनिश में उनको वही बोलना होता है आई हैव अ टेंगो una casa grande। आपके साथ ऐसी गलती कभी नहीं हुई कि आपके हिंदी में ऐसा नहीं बोलना पड़ता है कि घर, मेरा घर, मेरे पास एक बड़ा घर है तो घर बड़ा है, ऐसा नहीं बोलते हैं। हाँ घर बड़ा, माई हाउस इज बिग, वो हिंदी और इंग्लिश मैच कर जाता है। तो जहां हिंदी और इंग्लिश एक जैसे होंगे वहां आपके गलत होने के चांसेस कम है, नहीं है। और जहां हिंदी और इंग्लिश में फर्क होगा, आपका दिमाग अभी शुरुआत में किसके जैसा सोचेगा? हिंदी के जैसा। और वहां जब मैं आपको इंग्लिश पे बताऊंगा कि इंग्लिश में ये बात अलग है हिंदी से, तो आप कहोगे ओके। फिर आप उस पर काम करोगे धीरे धीरे, कोई जल्दी कोई थोड़ा देर में उसकी आदत डेवलप कर लेगा। कुछ समझ में आया है? मैंने कोशिश की आपको ये समझाने की कि एक नई भाषा सीखना क्या होता है। दो भाषाओं में कुछ सिमिलरिटीज होती है, वहां कोई परेशानी नहीं होती है सीखते समय। और कुछ फर्क होते हैं वहां पर बड़ी मुश्किल होती है। आप अभी तक नहीं सोच सकते थे अगर कोई स्पेनिश नेटिव स्पीकर से इंग्लिश में आप बात करते और बार बार वो बोलता माई सिस्टर हैज 16 years, माई मदर हैज 30 years। तो आप बोलती है ऐसे काहे बोलता है, आप ऐसे ही सोचते रहते हैं। आपको लगता है ये सब बेवकूफ वाला लाइन क्या ही बोल रहा है। अब समझ में आया क्यों बोल रहा है? तो हम अगर किसी की मदर टंग थोड़ा बहुत जान जाए तो उसके इंग्लिश बोलने में क्या गलतियां होंगी इसके प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी स्पेनिश जानता हूँ, तो मैं स्पेनिश बोलने वाले को जब इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मुझे आसानी होती है पढ़ाने में, क्योंकि मुझे पता है कि इसके मदर टंग में क्या है जो इंग्लिश से अलग है, वो इसको परेशान करेगा। तो आई कैन प्रेडिक्ट द मिस्टेक्स दे विल मेक। मैं जो गलतियां करने वाले हैं उसको पहले से अंदाजा लगा सकता हूँ कि गलती से होगी। वैसे ही मुझे थोड़ी सी इटालियन पता है, तो जो इटालियन और इंग्लिश में फर्क है वो चीज मैं समझता हूँ। और इसकी वजह से जो इटालियन लोग हैं वो जब इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी होने वाली गलतियों का अंदाजा पहले से लगता है। आप लोग के बारे में तो बहुत आसानी से होगा, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज जो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो आई नो कि आप कौन सी गलतियां करने वाले हैं। लेकिन आप में से कुछ मुझे सरप्राइज कर देते हैं। आप ऐसी गलतियां करते हैं जो मैं सोचता ही नहीं। वजह क्या है? आप नहीं सोचते, आप कुछ का कुछ कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आप सब लोगों को कहा कि इंग्लिश में जब भी बोलेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब को साथ रखेंगे। ये एक बड़ा फर्क है हिंदी और इंग्लिश में। हमारे हिंदी में वर्ब सबसे आखिर में जाता है। मैं ना गर्मी के मौसम आने पे ना छत पे सोता हूँ। तो कहाँ से चले थे, मैं गर्मी के मौसम आने पे छत पे, उसके बाद गया सोता हूँ। और इंग्लिश में सबसे पहले बोलना होगा आई स्लीप। तो ये आदत डेवलप करने में जितनी देर लगे आप लोगों को, कि आपने सब्जेक्ट बोला है तो एक वर्ब चाहिए। होता क्या है, आई समर सीजन वो चलने लग जाता है, हिंदी के हिसाब से चलने लग जाता है, चलने लगेगा दिमाग में आपके, क्योंकि आप हिंदी में बोलते हैं वैसे वही वर्ड ऑर्डर आने लगेगा। ट्राई टू कंट्रोल इट। जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है वो इतना ज्यादा इस चीज को छोड़ सकता है आसानी से। वो आई हैव 16 years, आई हैव 30 years वैसी जाती है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस किया किसी ने उसका चल चला जाता है वो। और जो नया नया है वो वही सही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते उसका। कोई आसान है अपनी मदर टंग का इन्फ्लुएंस रोकना? इट टेक्स टाइम।
आप लोग कल अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते, 2-4 सेंटेंस लिख लेते तो अच्छा होता। आप वो दूर होते, वो अपनी मदर टंग इन्फ्लुएंस से धीरे धीरे करते। आज लिख लेना थोड़ा, इसमें से कुछ पढ़ोगे ना, जमी कलम से कुछ ले लेना। ये लाइन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसकी इस सेंटेंस पे ये वर्ड बदल के अपने बारे में कुछ लिख दूं। कुछ भी जो भी समझ में आए वो अपने बारे में, मतलब आप कुछ बताओ अपने बारे में इंग्लिश में, जो पढ़े उसके ये मदद लेकर के। यहाँ लिखा है हम 2 घंटे के लिए आई प्ले द पियानो फॉर कपल ऑफ आवर्स, ठीक है, तो आप भी तो कुछ 1-2 घंटे के लिए करते होंगे, वो लिख देते आप। On Sundays, sleep in the afternoon for a couple of hours. Yeah, in summer, I sleep in the afternoon for a couple of hours. कुछ भी आपके दिमाग में आए, हर एक का इतना अलग अलग दिमाग है ना, कुछ तो आएगा। एक लाइन आए, 2 लाइन आए, बस वही लिखो। आई एम नॉट सेइंग राइट अ नॉवेल 10 sentences 20 sentences, नो, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड राइट। और जो कब आएगा दिमाग में, पढ़ते समय ही आएगा। ये लाइन पढ़ रहे ना, ऐसे हम सोच सकते। तो आई होप कि आपको पता चला कि बचपन में आपको जो हिंदी इंग्लिश के वर्ड्स की हिंदी कराई है वो बहुत खतरनाक रहा है, ठीक है। वोकैबलरी जो है उसको पढ़ने का, अभी तक तो मैंने ग्रामर के बारे में बात की, अब मैं वोकैबलरी के बारे में बात कर दूं। 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होता है कॉन्क्रीट, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब फिजिकल, उसको सीखना द इजिएस्ट थिंग। कुर्सी, चेयर, दीवार, वॉल, लड़का, बॉय, शिक्षक, टीचर, इजीएस्ट। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं वो कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं होते, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो दिखते नहीं, टच नहीं किए जा सकते, वो आइडियाज हैं। अब वो जो आइडिया है एक भाषा में, वो जरूरी नहीं कि दूसरी भाषा में एग्जैक्ट वो आइडिया हो। अगर मैच कर गया तो अच्छी बात है, ना भी मैच कर सकता है। चलिए हिंदी में एक वर्ड कहते हैं, उर्दू का एक वर्ड लेते हैं, दीदार। सुना है? इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड लाना बहुत मुश्किल है। दीदार कोई चीज है, छू के बता दोगे? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना दीदार का, महबूब के दीदार के दीदार के इंतजार में आंखें तरस रही हैं, है ना। अब ये महबूब, ये जो आइडिया है, बता दो ये महबूब है, ऐसा नहीं होता। एक कॉन्सेप्ट है, आप जिसको चाहते हैं वो क्या है, महबूब है, ठीक है। तो हर एक भाषा का जो अपना एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स होता है, वो दूसरी भाषा में कैरी कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ ही जगह हो पाता है। मैं इसके बारे में और बताता हूं आप लोगों को, कुछ दिमाग तो बड़ा करो दोस्तों। अगर हर एक वर्ड जो एक लैंग्वेज में है, उसके लिए एक जस का तस दूसरी लैंग्वेज में एक वर्ड होता, तो क्या होता? सुनो, फिर प्रेमचंद जो कितनी महान लेखक है प्रेमचंद, क्योंकि वो जो लिखते हैं उनके शब्द जो आते हैं क्यों महान है, कि वो एक बात को बताने के जो शब्द चुनते हैं वो कोई और चुन नहीं पाया, जिस तरीके से वो बताते हैं। आप उनकी कहानियां पढ़ें, पढ़ते पढ़ते आप इमोशंस फील करते हैं। तो अगर हर एक वर्ड के लिए एक वर्ड होता, तो जिस आदमी को जानकारी होती वो जस के तस प्रेमचंद को इंग्लिश में लिख देता और अंग्रेजों का प्रेमचंद बन जाता। बस खाली उन्हीं कहानियों के बदले इंग्लिश वर्ड लिख देता। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेमचंद जो वर्ड यूज करते वो कहाँ पैदा हुए हैं, भारत में, यहाँ के माहौल की वजह से, यहाँ के सिचुएशन की वजह से। अंग्रेजों का माहौल कुछ और, तो वहां कुछ और वर्ड्स पैदा हुए हैं। कॉन्सेप्ट्स जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की बात कर रहा हूँ, बहुत से अलग अलग आइडियाज होंगे। जैसे मैंने कहा दीदार, मैंने कहा महबूब, इंग्लिश में क्या करोगे, लवर, स्वीट हार्ट, ठीक है। लेकिन ये स्वीट हार्ट फादर तो अपनी बेटी को बोल देगा आराम से, नो स्वीट हार्ट, डोंट डोंट डू दैट। लेकिन बता दो कौन सा पिता अपनी बेटी को महबूब बोल रहा है? तो कभी 100% मैच नहीं करते। ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं ना, उनमें कुछ सिमिलरिटीज होती है, कुछ फर्क रह जाता है।
कब डेवलप करोगे इतनी अपने आप को मैच्योरिटी अंदर? अभी तुम बच्चों की तरह एक वर्ड के बदले दूसरा वर्ड खेल रहे हो और कहते हो कि भाषा सीख रहे हैं। मुझे बहुत कोफ्त होती है, अभी मैं जो कर रहा हूँ ना, अंदर से मेरे अंदर बहुत कुड़न है कि 20 साल के होने के बाद हम भारतीयों को इतनी समझ नहीं होती है हमारे पास कि हम कोई नई भाषा सीखने जा रहे हैं, तो ये मान के चलें कि हम उनके कल्चर के बारे में जानेंगे उस भाषा से। कुछ वर्ड्स तो कॉमन मिलने ही मिलने हैं, जैसे मरते तो यहाँ भी हम लोग, मरना भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, मरते वहां भी लोग हैं, इसलिए आसान है उस आइडिया को समझना। डाई, पीते हैं यहाँ पानी को, वहां भी पीते हैं चीजों को, ड्रिंक। तो जो आसान है, जो कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं, उनके लिए वर्ड्स मिलने आसान हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा, दीदार, महबूब, कहाँ से करोगे? हिंदी में एक वर्ड है, अरे आपके दर्शन हुए बहुत बहुत अहो भाग्य हमारे, सुना है? कॉमन है, अरे आपके दर्शन हुए बहुत अहो भाग्य हमारे। ठीक है, तो अहो भाग्य जो आपने कहा, मैं आपको एक वर्ड देता हूं इंग्लिश में, फॉर्चुनेट, मतलब हम हैं, एडजेक्टिव है फॉर्चुनेट। अहोभाग्य नाउन है, अहोभाग्य अपने ग्रामर के हिसाब से वो क्या है, नाउन। और हम इंग्लिश में बोलेंगे तो एक फॉर्चुनेट वर्ड से ही बोलेंगे। एक और वर्ड ले सकते हैं, प्रिविलेज्ड, ठीक है, और एक वर्ड ले सकते हैं नाउन के तौर पे, इट इज माई प्रिविलेज दैट आई गॉट अ चांस टू मीट यू। लेकिन दर्शन किधर गया? तो दर्शन जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और अनफॉर्चुनेटली ये जो बचपन में पलीता लगाया आपको थर्ड क्लास इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स ने, पलीता इन्फेक्शन डाला दिमाग में, वो इन्फेक्शन इतना बड़ा हो गया, सॉरी, कि आप लोग अभी हर वर्ड का इंग्लिश मांग ले चलते हो। मैं ऐसे क्लासेस पढ़ा पढ़ा के तंग आ गया, पहले पल्ले पल्ले अपने लाइफ के 7-8 साल। तो वो आते थे, वो कहते थे इस शब्द का इंग्लिश, उस शब्द का इंग्लिश, उनको बस हिंदी वर्ड्स के इंग्लिश जानने थे। एक बच्चा तो ऐसा था जिसने हिंदी चंपक खरीद लिया और बैठ के उसको इंग्लिश कर रहा है कि मैं अपनी इंग्लिश बेहतर करूंगा। तो हिंदी में कहानियां लिखी थी ना, वो इंग्लिश में कर रहा। मैंने कहा क्लास को कि सब इंग्लिश चंपक खरीदो और उसको पढ़ो। क्यों? कि तुम कौन सी भाषा सीखना चाहते हो? इंग्लिश। तो देखो कि इंग्लिश भाषा कैसे लिखी जाती है, उसमें कौन से वर्ड्स आते हैं, कैसे अरेंज होते हैं। तुम इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगी तुम्हारी, ठीक है, अगर कोई उसको एक्सप्लेन करने वाला मिल जाए तो साथ में। उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने जाके हिंदी चंपक खरीदा, उसने कहा हम ट्रांसलेट करेंगे, उससे ज्यादा मेरा इंग्लिश ठीक होगा। आज तक उसकी इंग्लिश ठीक नहीं है, उस जाहिल इंसान की। जाहिल, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट उसका सोच वैसा है, बेवकूफ। जिस भाषा को सीखना चाहते हो उससे दूर रहोगे, उसको नहीं देखना चाहते कि लोग कैसे उसको यूज करते हैं। तुमने हेलो तो सुना है, हेलो जानते हो ना, इसलिए जानते हो कि तुमने सुना है। किसने हेलो देयर सुना? हेलो देयर नहीं सुना, बस इस वजह से नहीं जानते हो तुम। अगर तुम्हारे सामने 10 लोग अब तक हेलो देयर बोले होते तो तुम ये भी जानते ना, तो तुम 50 चंपक पढ़ लो, हेलो देयर कैसे जान जाओगे हिंदी वाले चंपक पढ़ने से? लेकिन किसी इंग्लिश चंपक में हेलो देयर किसी दिन रहेगा तो जानने का मौका मिलेगा कि नहीं? एग्जाम्पल देके सिखा रहा हूँ बात को, कि तुम हिंदी के चंपक पढ़े जा रहे हो, ट्रांसलेट किए जा रहे हो, ठीक है, हेलो देयर कभी नहीं आने वाला तुम्हारे दिमाग में। लेकिन अगर तुम इंग्लिश में चंपक पढ़ रहे हो सकता है किसी दिन किसी कहानी में किसी कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को कह दिया हेलो देयर, तो तुम आओगे ये क्या ऐसा हेलो देयर, राइट? तो सीख जाओगे ना। तो सीखने के लिए एक्सपोजर जरूरी है कि नहीं? अगर गलत काम करना है तो गलत काम को होते हुए देखना चाहिए ना, तभी तो सीखेंगे। आप रहे सारे अच्छे लोगों के साथ और खाली अच्छा चीज होते हुए देखें, तो आप गलत काम कैसे सीख जाओगे सर? उसका एक्सपोजर चाहिए ना। आपने कभी किसी को नहीं देखा कि कोई आदमी किसी औरत के साथ बदतमीजी कर रहा हो? कभी देखा ही नहीं, बचपन से आज तक जो और आदमी मिलता है आपके आसपास, वो औरत को रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। तो आप कैसे सीख जाओगे कि औरत के साथ बदतमीजी करनी है? कैसे सीख जाओगे? इट्स डिफिकल्ट ना। पॉइंट इज एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आपको कुछ भी सीखना है वो सामने आना चाहिए आपके पहले, देन यू विल लर्न। हाँ, ये अलग बात है कि आप 2 तक देखोगे, 3 आप अपने मन से ला सकते हो। आपने देखा बदतमीजी होते हुए, थोड़ा आप उसको एक कदम आगे ले गए, जो बदतमीजी पहले किसी ने नहीं की थी आपके सामने, वो बन कर ली, लेकिन आपने पहले बदतमीजी सीखी तो तभी तो उसको आप आगे ले गए। तो वैसे ही इन इंग्लिश
इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, एक्सपोज योरसेल्फ टू इंग्लिश। अब देखो इस किताब को, डू वी हैव वन हिंदी वर्ड इन दिस बुक? व्हाई नॉट? बिकॉज वी हैव कम हियर टू लर्न। अगर आप स्पेनिश या इटालियन सीखना चाहते, ये किताब होती क्या? ऐसी किताब होती, बट हियर वी वुड हैव Spanish or Italian, and I have one because I'm learning. I have for myself no English words, just Italian, everything Italian because I'm learning. ये बेसिक आइडिया नहीं समझाती लोगों को, और लोग छापते हैं बाइलिंगुअल किताबें और कहते हैं ये अच्छी किताब है सिखाने के लिए। हम टीचर को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, जब आप फंसोगे तो हेल्प करेगा, बट यू डोंट नीड अ बाइलिंगुअल बुक एवर, ना बचपन में ना भी, यू डोंट नीड दैट। तो ऑल आई कैन से इज, एक बहुत ही बेकार राजमिस्त्री से आपने अपने बहुत ऊंचे वाले बिल्डिंग की, जो आपको 10 तल्ला बनवाना था, उसकी नींव डलवा दी। आप समझ में आ रही है? 10 तल्ला मकान बनाने का प्लान था और आपने नींव डलवाई एक ऐसे राजमिस्त्री से जिसको कोई काम सही से नहीं आता है, इसका कंस्ट्रक्शन का। दीवार खड़ा करना नहीं आता सही से, सीधा दीवार खड़ा नहीं कर सकता जो ना गिरे, ठीक है, उसको कुछ नहीं आता। आप उसी से करवाए क्या? नींव डलवाए। अब बाद में जब बिल्डिंग 1-2 तल्ला हो गई और डगमग डगमग कर रही है, आपको ले जाना है 10वें तल्ले तक, आप किसी को बुला कहते इसको सही कर दो, इसको सही कर दो, कोई सही नहीं करेगा। समझदार मिस्त्री जो आएगा वो कहेगा हटाओ इसको, नया नींव डालने दो, सही हो जाएगा। मैं नया नींव डाल रहा हूं, मैं इज को आपके दिमाग से हटा रहा हूं कि इस मतलब है, नहीं होता है, हटाओ दिमाग से। इस क्या है? बी वर्ब का एक फॉर्म। तुम्हें दिमाग में गया? इस मतलब है, नहीं होता है। इस मतलब क्या होता है? बी वर्ब का एक फॉर्म है, 3 फॉर्म्स होते हैं। बी वर्ब का हिंदी क्या होता है? होना। तो जब भी आपको होना का जरूरत पड़ेगा, आप बी वर्ब यूज करोगे। अब उसके तीनों फॉर्म में से जिसकी जरूरत होगी आप यूज करोगे। मैं बहुत गुस्से में हूं, मैं बहुत गुस्से में हूं। इस वर्ब में वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? होना। गुस्सा वर्ब नहीं है, गुस्सा वर्ब नहीं है, गुस्सा एक नाउन है, ठीक है। मैं बहुत गुस्से में हूं, ठीक है, गुस्सा एक नाउन है। लेकिन ध्यान रखो, मैं गुस्से में हूं, मैं कमरे में हूं, मैं शहर में हूं। गुस्सा क्या है इस सेंटेंस में? एहसास करके बताओ। मैं ऐसे इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, जब मैं हिंदी में बात करूँ ना, तो मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ जो आपने बचपन में, मैं इंग्लिश में इसलिए बात करता हूँ, मुझे आपको स्पोकन इंग्लिश सिखानी है, बोलना सिखाना है। लेकिन जब मैं और कुछ बताना चाहूँ, इस सारी बातचीत से आपके बोलने पे जीरो असर पड़ा। मैं पिछले जितनी देर 15-20 मिनट से आधे घंटे 1 घंटे से हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे, इससे आपके बोलने पे जीरो फायदा होगा, आपकी इंग्लिश बोलने में जीरो फायदा होगा, मैं खुद जानता हूँ। आपको मैंने आपकी स्पोकन इंग्लिश से जीरो मदद की, लेकिन जो मदद की वो उससे ज्यादा बड़ी है। बता देता हूँ क्या। दिमाग में अगर कंफ्यूजन हो, आप अपनी पत्नी पर डाउट कर रहे हो, ठीक है, तो वो चाहे ये ला के दे, चाहे वो ला के दे, अच्छा अच्छा खाना बनाए, आपको खुशी नहीं हो रही इससे। पहले डाउट हटना चाहिए अपनी वाइफ के बारे में, उसके बाद वो कुछ खाना बनाए ना बनाए आप बहुत खुश रहोगे, हाँ या ना? तो वैसे ही आपके मन में जो कंफ्यूजन है इंग्लिश को लेके, वो रहने के बाद आप जितनी भी इंग्लिश सुनोगे ना मेरे मुंह से, वो डाउट क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके मन में क्लैरिटी नहीं इंग्लिश को लेके। तो ये जो हिंदी में बातचीत हो रही है, भले ही इसका स्पोकन इंग्लिश पे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इंग्लिश सीखने से डायरेक्ट बहुत अच्छा कनेक्शन। अब बहुत सी ऐसी चीजें जो बचपन से लेके चल रहे, शायद उससे छुटकारा मिल जाए अभी के अभी। मैंने कहा मैं गुस्से में हूं। गुस्सा यहाँ पर एक नाउन है। पहले तुम्हारे दिमाग में नाउन और वर्ब का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? नाउन एक चीज होता है, नाउन क्या होता है, और वर्ब एक काम है। रोना, हंसना, चिल्लाना, पीटना, पढ़ाना, समझाना, समझना, देखना, सुनना, होना, ये सब क्या है? वर्ब है। और नाउन चीजें होती हैं, ओके। तो मैं गुस्से में हूं, हाँ, गुस्सा वर्ब नहीं है, ठीक है। गुस्सा क्या है? नाउन, क्योंकि गुस्सा एक चीज है। गुस्सा अच्छी चीज है या बुरी चीज? चीज तो है ना, अच्छा हो या बुरा, चीज है ना। चीज है तो फिर से बोलेंगे, हाँ चलिए बढ़िया है। तो बुद्धा कहते हैं गुस्सा हमेशा बुरा ही है, ठीक है। गुस्सा बुरा ही है, और मैं भी उस बात को मानता हूँ, गुस्सा बुरा ही है। क्रोध
आपका दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है। पहला सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। और दूसरा सबसे बड़ा एनिमी जो है आप इंसानों का, हम इंसानों का, वो क्या है? शत्रु, गुस्सा, क्रोध। आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। आप, हम जान रहे हैं आप लोग बहुत सी चीजें लेके आएंगे। एक कोई आपकी माँ का मर्डर आपके सामने कर दे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, हम जानते हैं। लेकिन वो जो बोल के गए हैं वो बहुत बड़ी बात बोल के गए हैं, वो ऐसी चीजों के लिए नहीं है। सरफेस पे मामला अलग लगता है, बट क्रोध इज अ बैड थिंग। क्रोध इज अ रियली बैड थिंग। एनीवेज, कम बैक। तो गुस्सा, मैं गुस्से में, गुस्सा एक चीज है। तो गुस्सा इज अ बैड आइडिया। गुस्सा इज अ नाउन। तो हिंदी में बोलते हैं मैं गुस्से में हूँ, बहुत नेचुरल है। लेकिन इंग्लिश में, अब अगर गुस्सा नाउन का इंग्लिश करना चाहेंगे तो एंगर होगा। ठीक है। तो इस बात को बताने के दो ऑप्शंस हैं इंग्लिश में। एक है आई एम एंग्री। आपको महसूस हो गया? आई एम, मैं गुस्से में हूं भाई। आई एम वेरी, पापा बहुत गुस्से में है। पापा इज वेरी एंग्री। और दूसरा सुनो, पापा इज इन ए लॉट ऑफ एंगर। पापा इज इन अ लॉट ऑफ एंगर। ये हुआ शाब्दिक ट्रांसलेशन। पापा इज इन ए लॉट ऑफ एंगर। ए लॉट ऑफ एंगर मतलब बहुत गुस्सा। एंगर इज नाउन, एंग्री इज एडजेक्टिव। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कौन सा सेंटेंस आपको, क्योंकि आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत है, बताइए आपको नेचुरल कौन सी लग रही है? आई एम वेरी, पापा इज वेरी एंग्री और पापा इज इन अ लॉट ऑफ एंगर। पापा इज वेरी एंग्री। ज्यादातर अंग्रेज जो इंग्लिश जानते हैं वो इस सिचुएशन में, कोई बहुत गुस्से में, यही लाइन बोलते हैं, दैट पर्सन इज वेरी एंग्री, आई एम वेरी एंग्री। तो एंग्री तो एडजेक्टिव था, है। और यहाँ हिंदी में क्या बोले हैं? गुस्से में है। तो हर बार ये जो वर्ड, ये जो चंपक ट्रांसलेट कर रहा था ना हिंदी से इंग्लिश, उसकी प्रॉब्लम है कि वो यहीं तक रह पाएगा। पापा इज इन अ लॉट ऑफ एंगर, मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से, क्योंकि वो हिंदी को इंग्लिश में डालता है। वो ये नहीं जानता कि अंग्रेज अक्सर क्या बोलते हैं, इंग्लिश जानने वाले अक्सर क्या बोलते हैं। एक बात को बताने के कई तरीके हो जाएंगे, ग्रामर के साथ, वोकैबुलरी के साथ। एक दो जो होता है वो ज्यादा नेचुरल है। वो कब पता चलता है हमें? सुनते 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 सुनते। तो बच्चों आप लोग एक्सपोजर पे ध्यान दें। ये कहानी इसलिए लिखी है ताकि कुछ बहुत नेचुरल नेचुरल सेंटेंसेस सीख सकें। सम डेज अगो तौहीद आस्क्ड मी यस्टरडे, कपल ऑफ आवर्स, दो क्यों नहीं बोल रहा? बस एक फ्रेज है इंग्लिश में, एक्सेप्ट करो। सीखा तुमने कुछ नया, तो बस ऐसे ही आगे बढ़ना है। जो जानते हैं उसी में घोल। अरे 4-10 परिवार उसी में आपस में शादी करते हैं, अच्छा नहीं है? बाहर से लाओ ना, ले नए नए लोग, परिवार बड़ा हो जाएगा। कहीं यूपी से लेके आ जाओ, कहीं आसाम से लेके आ जाओ, एक भौजाई लेके आ जाओ बंगाल से, एक जीजा जी लेके आ जाओ कहाँ से, तमिलनाडु से। अरे यार पूरा इंडिया फैमिली हो जाएगी। तो अगर ग्रोथ चाहिए वोकैबुलरी में, तो क्या करना है? खाली वही 4-5 वर्ड जानते हैं उसी को रिपीट करते रहना है, कुछ और भी आने चाहिए। ठीक है। पता नहीं एनालॉजी बेकार हो सकती है, जो मैंने उदाहरण दिया वो हो सकता है बेकार हो, लेकिन बात पॉइंट समझ में आ गई आपको तो वो मायने रखता है। ओके। हर बार एनालॉजी परफेक्ट निकले जरूरी नहीं है। ओके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परिवार बड़ा होने के लिए जरूरी है कि जाएं। अभी देखेंगे जितने के गांव देहात में लोग हैं ना, आपस में नजदीक में ही रखते हैं अपना रिश्ता। उस जगह तो वो तगड़े हो जाते हैं, लेकिन इट्स नॉट गोना बी गुड। उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, व्हाई पीपल वांट टू मैरी इन क्लोज रिलेशंस, you know, where and live in one place, because there they can become more influential, dominant। एक गांव में 40 लोग हैं, वो 40 आपस में रिश्तेदार है, कौन लड़ रहा है उससे? 40 लोग हैं वो, राइट। अब आपके एक बहनोई हो दूसरे गांव में, 40 कोस दूर, दूसरे जीजाजी हो कहीं और, तो आप अकेले पड़ जाते हैं। इस गांव में लोग चढ़ सकते हैं, इसलिए लोग उस तरह से जाते हैं। बट देयर इज अ परसेप्शन ना कि आपके बच्चे को 10 जगह हॉलीडेज बिताने का मौका भी तो मिलेगा if your relatives are in different places। Okay, anyways, come back to English main point. Now that if I'm talking in English, now suddenly this is important for your practical growth. My English, when I speak English to you, so when I speak English to you, you listen to me, pay attention to the words I'm using. That's your job. क्या बोला आखिरी में? नहीं, that's our job, तुम लोग बोलो, है ना?
हम बोलेंगे दैट्स योर जॉब, लेकिन तुम्हारे दिमाग क्या सुनना चाहिए? हाँ, ऐसे समझना, थोड़ा सा चेंज करके। ओके, गुड। इट कैन बी यूज्ड फॉर वन पर्सन, इट कैन, अभी मैंने बताया नहीं था हेलो देयर के बारे में, लेट मी एक्सप्लेन। Hello there is normally used when you are talking to somebody who cannot respond back to you, who cannot respond back to you. So normally what happens when you have a YouTube channel and you're talking to your audience, you come, hello there, okay, or you're speaking on a TV, okay, and you are a host, hello there, okay, or you're a radio host and you're talking to people, they are not gonna respond to you hello, so you say hello there. So you're right. In a lot of cases, you normally say hello there when you're talking to a good big group of people, but it is not necessary. You can say hello there to one person as well if it is a situation where that person is not face to face with you, basically, right? So hello there is, तो मेरे पॉइंट यही है, बच्चे को पता है थोड़ा बहुत, ठीक है? तो my suggestion to you all is keep yourself exposed to English. Expose yourself to English as much as you can by listening to English songs, reading English novels, listening to YouTube podcasts in English, doing a lot of things in English, listening to the commentary in English. Expose yourself to English. This is important. It's like food for English. All the exposure that you give to yourself when you listen to English a lot in your life, from morning to evening, it's like food for your English. Your English grows faster and better. Okay. And if you stay away from English all day, you give yourself zero chance to listen to English, and you come to the class only. That's all you do. Then you will learn slowly. You will learn. Of course, you're attending a class. Of course, you will learn, but you will learn slowly in comparison to those who are giving themselves exposure to listen to English. Is that simple to understand? अगर चार लड़के इंग्लिश सुन रहे हैं बाहर में क्लास के बाद, ऑडियो फाइल्स के साथ साथ और भी चीजें, और चार लोग सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो ये क्या उतनी तेजी से सीखेंगे? उतनी तेजी से सीखेंगे? ये तो ऑब्वियस चीज है, बताने की जरूरत नहीं है। एनीवन विद कॉमन सेंस विल नो कि मैं सिर्फ क्लास अटेंड कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा उसके अलावा, तो मैं सीख रहा हूँ, जाहिर सी बात है। लेकिन कोई क्लास भी अटेंड कर रहा है और अपने आप को एक्सपोजर भी दे रहा है इंग्लिश का, और वहां कंफ्यूजन होता है, लेके चलाता है, सर मैंने वो वीडियो देखा उसमें ऐसे बोला, व्हाट व्हाई सर, तो वो ज्यादा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? ऑब्वियसली। चलो, शिल्पा सेज, here in England my perfect weekend begins at my home. Here in England my perfect weekend begins at my home. Her perfect weekend begins at her home. This line accepts that she likes staying at home. उसने कहा my perfect weekend begins at home. इसका मतलब उसको घर पे रहना पसंद है कि नहीं वीकेंड पे? अगर नहीं होता तो परफेक्ट वीकेंड कैसे होता है? वो परफेक्ट मींस नो कंप्लेंट्स. Perfect weekend begins at home. So when she is at home, it is her perfect weekend. Her perfect weekend begins at home with my husband Raj Kundra. Here in England, when she is in England, her perfect weekend begins at home with her husband Raj Kundra. आजकल perfect weekend नहीं हो रहा होगा because Kundra Sahab is in jail, I think. On Fridays, I have already taught you, whether you say Fridays, you say Friday, or you say a Friday, it's the same thing. ये इंग्लिश में से पॉसिबल है, हिंदी में नहीं. हिंदी में एक ही चीज होगा, शुक्रवार को बोलिए, शुक्रवारों को नहीं कोई बोलता हिंदी में. बोलिए एक शुक्रवार को, ऐसे भी कोई नहीं बोलता. सब लोग क्या बोलते हैं? But in English we have three: on Friday, on Fridays, on a Friday. फर्क है हिंदी इंग्लिश में कि सिमिलैरिटी हुआ ही है? ये फर्क है. तो आई ऑलवेज हाईलाइट द डिफरेंस, और जहां सिमिलैरिटी है वो मैं चाहता हूं आप लोग खुद ऑब्जर्व कर लेंगे, तो सेम है. ओके. On Fridays we usually watch TV. Easy, we watch, but usually is a frequency adverb.
It can go between the subject and the verb. We usually watch TV, comma is important. Problem is, we will not pay attention. There was this. हम जब देखेंगे नहीं उसको तो यूज कैसे कर लेंगे किसी चीज? आप 5 बार देखोगे, छठी बार आपका दिमाग एक्सपेक्ट करेगा यहाँ पर 5 बार कॉमा देखा था, यहाँ होना चाहिए, ये हो गया आपका सीखना। जब आप लिखोगे तो कॉमा आ जाएगा। Sometimes some grown up people in their late 20s, 26, 27, even they are not getting punctuations right. ना फुल स्टॉप कॉमा नहीं होता उनसे सही। क्यों भाई? कभी गौर ही नहीं करते। मेरी एक अच्छी स्टूडेंट है इन द नेक्स्ट क्लास, when she speaks she will make a good impression, but when she writes she doesn't know when to give a full stop, when to give a comma. Why? She doesn't pay attention when she reads. Take a look. We usually watch TV. Can you see the comma? But sometimes friends or family come to play cards. Sometimes friends or family come to play cards. They come to play cards. Okay, dash, poker. So there are lots of games when you play cards, lots of options, but they play poker. I love poker. We get a takeaway pizza. We get a, yes, yes, sir. Yes, sir, please, sir. We get a takeaway pizza. We get a takeaway pizza. Next. We understand takeaway pizza? Okay. We get a takeaway pizza. Pizza goes best with playing cards. So when he says this line, pizza goes best with playing cards, हम सब मैसेज ले लेते हैं कहीं ना कहीं। उसके हिसाब से कार्ड खेलते समय मजा आता है, राइट? ये कॉम्बिनेशन मस्त है, पिज्जा खाना और कार्ड्स खेलना। अब आप बताओ भाई, हम लोग अगर टीवी देखते रहते हैं, क्रिकेट देखते रहते हैं, उस समय क्या मस्त लगता है हम लोग को? पॉपकॉर्न खाना। चलिए एक सेंटेंस बना लेते हैं। पॉपकॉर्न गोज बेस्ट विद वॉचिंग क्रिकेट ऑन टीवी। पॉपकॉर्न गोज बेस्ट विद, देखिए देखिए, कुछ करना नहीं होता है, सामने देखना है। पिज्जा गोज बेस्ट, पिज्जा गोज बेस्ट विद प्लेइंग कार्ड्स। आप क्या बोल रहे हैं? पॉपकॉर्न गोज बेस्ट with watching TV. Right? Any problems? But some people will say, nah, Coca-Cola goes best with watching TV. Okay. Depends. लेकिन एक बात तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा, Katrina Kaif goes best with Akshay Kumar. What do you guys say? Have you seen Katrina and Akshay on the screen together? They make a perfect couple on the screen, right? On the screen, they look amazing together. Okay. Huh? Salman, Katrina. They don't look good at all now. There was a time they looked good when Salman was like a man. Now he looks more like a sard, a bull. Doesn't he? Yeah, he doesn't look like a human anymore. Not at all. You guys will never get to hear anything nice from me when you mention Salman Khan. You will never hear anything nice from me. Sorry. Okay, I will find something funny, something ridiculous, something insulting to say about Salman Khan. Aishwarya Rai and Salman Khan made a very good couple on screen. In Hum Dil De Chuke Sanam, they looked amazing together. But Salman Khan is Salman Khan. He spoiled it. Okay. On Sundays, oh, where were we? Pizza goes best with playing cards. White shirt goes best with black pants or blue jeans. Blue jeans and white shirt. White shirt goes best with blue jeans. Okay. White shirt सबसे अच्छा लगता है blue jeans के साथ. Did you get some water? Did you find water? No, I'll help you. Come. One here, and there is a hand wash there as well.
Okay, let's see. Pizza goes best with playing cards. महसूस कर सकते हैं. Pizza goes best with playing cards. The combination is amazing. Okay. And I drink green tea. Samosa goes best with chola or samosa goes best with chutney or onion? Samosa. What's your taste? आपका अपना अपना टेस्ट होगा, अपनी ओपिनियन होगी. इट्स जस्ट एन ओपिनियन, राइट? इस पे बहस नहीं बनता है. बहस बन सकता है. पिज्जा, samosa goes best with onion. Yeah, I like that too. Chutney. Chutney is the last thing. Chola, okay, to a certain extent. Chutney, if you say chutney, only Rajhari chutney. Pizza, samosa goes best with Rajhari chutney. Okay. Okay, Neer Hari Rajhari. Next. Pizza goes best with playing cards. And I drink green tea. Anybody drinks green tea here? You do? I told you ना, बचपन में जो हमें टीचर्स मिले थे, आप अच्छा 2-3 तरीकों से पूछे. किस क्लास का पढ़ा रहे थे वो? पहला, दूसरा, तीसरा? वो लोग. आप अब भी समझदार हो गए. देखो, पहला, दूसरा, तीसरा क्लास को पढ़ाने के लिए कैसे टीचर्स हायर हो रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में. कोई भी लड़की घर में बैठी हुई जाकर के, सुंदर रखनी चाहिए, एप्लीकेशन दे दे पढ़ाना चाहते हैं. ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ाओ. उसी ने पढ़ाया हम लोग को बचपन में, राइट? इंग्लिश. क्या जानती थी वो? उसने पढ़ा दिया क्या? ड्रिंक. ड्रिंक नहीं यूज करना चाहिए टी के साथ. और उसके बाद बड़े बड़े टीचर्स भी पढ़ाने लगे, ड्रिंक नहीं पढ़ाना, यूज करना चाहिए टी के साथ. ड्रिंक ऐसे करते हैं, पानी पीते हैं, चाय से पीते हैं. मेरा तो दिमाग कंफ्यूज हो गया था. सही बोल रहे हैं सर. I didn't use drink when I was young with tea. I never used drink. Once I used, my teacher corrected me and I understood. Bhai, drink is the wrong word for tea. फिर उन्होंने सिखाया, sip tea, take tea. And I grew up learned using these words. And then I started teaching the same. Sorry, this is true. I also taught, drink mat use karo tea ke saath. Sip tea bolo, take tea bolo. एंड जैसे से मेरी इंग्लिश की समझ बढ़ी, जो बिहार वाली समझ नहीं थी, उसके आगे गए. व्हेन आई मेड अमेरिकन फ्रेंड्स, व्हेन आई मेड ब्रिटिश फ्रेंड्स, व्हेन आई मेड ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स, एंड आई गॉट द एक्सपोजर. बिहार के टीचर्स क्या जानते हैं इंग्लिश के बारे में? वही किताबें, वही ग्रामर बुक्स, वही सब. तो मैं भी उतना ही जानता था, ऑफ कोर्स. बट देन टाइम्स चेंज. Internet became available, 4G, 3G internet, and we started talking to people on Skype. Okay, I made hundreds of friends. And then I learned I was wrong. When I said take tea, sip tea, they say have tea, drink tea. Somebody brings tea for you and he says, sorry, I don't drink tea. हम चाय नहीं पीते. Absolutely fine. मेरा तो दिमाग खराब कि यार ये सब क्या क्या सीख लिया हम लोगों ने. तो लिखा है ना सामने, I love drinking green tea. I drink green tea and I love green tea. So do you drink tea every day? कोई आपको बोले ना कि ड्रिंक नहीं लगाना टी के साथ, बोलना बचपन वाले टीचर से मत पढ़ो, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी. बड़े टीचर से पढ़ो, जो बड़े लोगों को पढ़ा रहे, जिनकी इंग्लिश बढ़िया है. अंग्रेजों से पूछिए. ठीक है क्या? चलो मेरे क्लास, फिर तो पक्का नहीं आएगा. Do you drink tea every day? I don't. I don't have adult habits. I mean, my father and mother didn't allow me to drink tea when I was a child. They said tea is bad. I said, okay. But I liked the taste of tea. So I wanted to drink. So it said, "Chhod ke dijiyega na thoda sa." So I used to get a little bit, okay, from their cup. And somehow I didn't develop this habit for tea. But I love tea. I love the taste. And some days when I'm really in the mood, then I don't drink 1 cup of tea. I drink 1 glass of tea. A lot of tea. Sometimes it's my food. Tea becomes my food. What do? I get a bowl of tea, 300 ml, 400 ml tea, okay? Not 50 ml, 300 ml, okay? एक पाव दूध में चिया पत्ती डाल दो, बन गया अच्छा सा चाय. And keep it, and then buy bundia
and add all the bundia, and it becomes a nice meal for one time. So sometimes I do it, like occasionally, once in a year, twice in a year, like that. But I don't drink tea every day. On Saturdays, I get up late at about 10:45. At about 10:45, I get up late at about 10:45. At about 10:45, quarter to 11, quarter to 11. Then I have a long bath. Then I have a long bath. Abhi ye sentence, very. I have a long bath. Such a simple sentence. Everybody understood the meaning. क्या करती है वो? देर तक, बस यही मतलब निकालोगे ना. लेकिन किसी के सामने ये सेंटेंस लेके जाओ हिंदी में, जितने दोस्त जानते हो ना तुम, उनके पास लेके जाओ. मैं देर तक नहाता हूं. और कोई भी इसकी इंग्लिश कर दे ऐसे. जिसने किया उसको 10 रुपए का चॉकलेट देना मेरे साइड से. हाँ, 10 का नहीं आता, 20 का दे देना, मेरे साइड से दे देना, मैं पे कर दूंगा उसके लिए पैसे. व्हाई? बिकॉज इट्स अ बिग थिंग. इफ somebody translates, मैं देर तक स्नान करता हूँ, देर तक नहाता हूँ. If somebody says I have a long bath, that person, I will happily give him a 20 rupee chocolate. हाँ भाई, बहुत अच्छा, ठीक है, keep it up, keep it up. Ask your friends, मैं देर तक नहाता हूँ. It's so easy. I have a long bath. लेकिन तुम ये आसान इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे सामने आ गया. जिसके सामने हिंदी खाली है ना, मैं देर तक नहाता हूँ, वो तो पगलाएगा. लेट, वो लॉन्ग नहीं आ रहा उसके दिमाग में. लॉन्ग वर्ड इज नॉट कमिंग टू देयर माइंड. लॉन्ग तभी आता है जब हिंदी में क्या दिमाग में आता है? लंबा. तब लॉन्ग दिमाग में स्ट्राइक करता है. और नहीं तो आप बोल दो खाली देर तक नहाते. कोई आदमी लॉन्ग वर्ड सोच ही नहीं पा रहा वहां पे, हम लोग जैसे पढ़ते हैं. इसीलिए इंग्लिश का एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है. ये सेंटेंस आया सामने, यू लर्न इट सो इजिली. आई हैव अ लॉन्ग बाथ. और हम जल्दी नहा लेते हैं तो आई हैव अ, हाँ बोलो बोलो, कम ऑन, यू आर फाइन. आई हैव अ, हाँ वेरी गुड. और आई हैव अ क्विक बाथ. आई हैव अ, तो अभी ये कैसे हो रहा है वो समझा दूं. I subject, have verb, nothing new. You know this. Subject and verb. A bath. Bath. What is the part of the speech of bath? What is the part of the speech of bath? No, you don't know? It's easy. I have a bath. A word is used before noun. A is used before a boy, a pen, a house, a teacher, a bath. Bath is a noun. नाउन के बारे में कोई वर्ड जो बता दे कुछ एक्स्ट्रा, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो. नहीं पता, मैं बता दूं. हाउस. ए हाउस. कैसा हाउस? बिग. ए बिग हाउस. बिग क्या है? एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन. लॉन्ग रिवर. ए लॉन्ग रिवर. लॉन्ग इज ए an adjective. An adjective. So I have a long bath. Bath is a noun. Long is an adjective. आसान कॉम्बिनेशन. लेकिन हिंदी में हम नहाते हैं, हम देर तक नहाते हैं. देर तक, किसी से भी पूछना, हम देर तक नहाते हैं. संडे को हम बहुत देर तक नहाते हैं. आधा घंटा, 45 मिनट, 2 घंटा नहाते हैं. देर तक नहाते हैं, ऐसे करके बोलना उनको. ठीक है, बहुत देर नहाते हैं, 2-3 घंटा नहाते हैं. भूल जाते हैं, अंदर बाथरूम लगाते हैं, 1-2 घंटा रहते हैं. 2 घंटा नहाते हैं, एकदम पानी बर्बाद, पूरा टंकी खाली. ऐसे ऐसे करके सारा दिमाग में देना कि क्या बोलना चाहते हो आप. उसका परफेक्ट. आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू मेड दिस सेंटेंस. यही तो मैं चाहता हूं कि आप लोग करें. ही सेड आई हैव अ लॉन्ग वॉक. आई हैव अ, वेरी गुड. अब इसका हिंदी क्या करेंगे? लंबा टहलते हैं, देर तक टहलते हैं, खूब देर तक टहलते हैं. आई हैव अ लॉन्ग वॉक. ओके, ये आई हैव अ लॉन्ग स्लीप, मतलब देर तक, खूब लंबा सोते हैं, बहुत देर तक सोते हैं. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब सुना. मम्मी, I will have a quick nap, half an hour, okay? And then I will wake up and I'll do all your work. I'll have a quick nap. I'll have a quick nap. मतलब 10-15 मिनट सोएंगे और उठ के कर देंगे. I'll have a quick nap, okay?
तो इंग्लिश में नाउन एडजेक्टिव वर्ब समझ में आ जाए ना, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं ये समझ में आ जाना है, फिर इंग्लिश इज इजी। एक्सपोजर चाहिए आपको, कोर्स एक्सपोजर इज वेरी नेसेसरी। आप ये सीख पाए क्यों? ये सामने आया तब ना। अगर ये नहीं सामने आता तो आप ये कैसे सीखते? इतने साल में नहीं सीखा, आई हैव अ लॉन्ग बात, 1 मिनट में सीखा। मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ी, यू जस्ट सॉ द सेंटेंस एंड यू लर्न, you saw and you figured out. I have a long bath. I have a quick bath. In winter season, I have a quick bath. और एक funny sentence बोलता हूँ, in sometimes in winter season I have a dry bath. नहीं ना I have a, अच्छा मैं इसकी हिंदी बोलूं, मैं कौवा स्नान किसी के घर में बोला गया कौवा स्नान, वो करते हैं ऐसे पानी लेके ऐसे ऐसे कर देते हैं, कहते हो गया क्विक बात, कौवा स्नान। ऑलराइट, ड्राई बात, ऐसा कुछ होता नहीं, मैंने ऐसे ही जोक के लिए बोला, आप समझ रहे हो ना, जोक जो। अच्छा, क्यों हंसते हो? क्योंकि ऐसी बात किसने पहले कही नहीं होती है, तो कुछ नया बोलना भी तो सीखना चाहिए। आई हैव अ ड्राई बाथ, बोले व्हाट डू यू मीन? यू कैन इमेजिन व्हाट इट मीन्स व्हेन इट इज वेरी कोल्ड एंड योर मम्मी forces you to go into the bathroom, then you have a dry bath. You turn the shower on and you stand on the in the corner and you come out after 5 minutes and you say, yeah, yeah, yeah. You pretend that you had a bath, right? So that is a dry bath. Okay, moving on. I have a long bath. Sometimes I watch TV. She watches TV where? In the bathroom. I, hello, badi baat. She watches TV in the bathroom. Do you know, sometimes there are TV in the bathrooms as well. Nicely fitted TV with a glass on the top so that the water doesn't go in. Okay, I will send you a photos. Um, I have a, I watch TV or listen to music. I also sometimes listen to music in the bath. Not now, life, your preferences change when age, when you become older. When I was young, like you guys, I used to play music in the bathroom and have a bath for a long time. People enjoy these silly things when they're young. And as he does that. Okay, yeah. You do these things when you're young. And when you get old, a lot of things change. Okay. But one silly question, do you have a mirror in the bathroom? फिर तो पक्का देर लगाने वाला है. If you have a mirror in the bathroom, some people have a mirror in the bathroom. A lot of people don't have a mirror in the bathroom. हम लोग shy लोग हैं, अपने आप को नहीं देखते in the mirror when we are not wearing clothes. Okay. I like staying in the country. So she listens to music in the bath and she watches TV in the bath. Wow. I like staying in the country. She likes staying. Country means share, desh nahi. Country means countryside, village area. I like staying in the country at weekend. Ab batao, who spends their weekend in the country? Shilpa Shetty or Jimmy Kalam? And Jimmy Kalam stays in London, not both. Come on. He stays in London. His flat is in London, right? So he spends his weekends in the city and she spends her weekend in the country. And now you understand town and country weekends. How somebody spends their weekend in the countryside and how somebody spends their weekends in the towns. Okay, in the towns, not in the town side. Okay. I like staying in the country at weekends. And then she says, I love walking barefoot on the grass. I love walking barefoot on the grass. Barefoot, no footwears. Yeah, exactly. Khali pair, nange pair. I walk barefoot on the grass. Do you like that? I like it a lot now. When I was a kid, I didn't like it. I hated it. I hated being barefoot outside my house on any surface. But now I like being barefoot on the grass. As a child, I found it disgusting. In the class. Yeah, you are. Yeah. Somebody has brought their footwears. No, not footwears inside the class. Okay. Sometimes we remove the bench chairs and we just clean and sleep here. Okay. And that's the reason we do not allow the footwears inside because sometimes we sleep on the floor. Okay. That's why.
So she walks barefoot on the grass. Barefoot मतलब समझ गए? And Salman Khan fights bare chest in his movies, right? He fights bare chest, right? Do you stay bare chest at home in the summer? You don't stay bare chest at home. No clothes on the upper half, like no shirt, no t-shirt. I am mostly like that when I'm at home. I don't care. My parents say, तुमको खाली पढ़ा लिखा तुम्हारा student समझता है, बाकी तुम हो नहीं कुछ. Because my lifestyle is very funny, like I said, I'm wearing my shorts and I'm wearing nothing else and I just keep walking everywhere. I don't care. Sometimes even when somebody knocks at the door and if it is not my students, I go like that, to bolo. Yeah. I'm not very, I have an image. Come on, I can't go without a t-shirt on. I don't mind. For me, it's normal. I only come well dressed in the class. I wear my clothes only because of you guys. Otherwise, I'm cool without just with my shorts all the time. Okay. My nephew Aryan is also like that. He also doesn't wear clothes a lot. He also walks in his shorts all the time. We rarely sleep with our clothes on. We rarely sleep with a shirt on or t-shirt on. We just go to bed bare chest every night, almost. Even in the winter. We have the blanket, but we are, bare chest in the blanket, under the blanket. Sometimes we fall sick because of that, and then we have to wear sweaters or other things in the winter. She likes walking barefoot. Yes. We also go to temples and mosques barefoot, right? We go to temples and mosques where barefoot. Okay. We go to a pub for lunch. A pub is a place where you can go and eat, like a restaurant, but you only find pubs in villages in England. In India, do you find pubs in villages? No, only in big cities. That's the difference. Pubs are there in villages in England, but pubs are in big cities in India. Okay. We go to a pub for lunch. So Shilpa Shetty has lunch in a pub. ये लिखे वो लिखेगी we go to a pub for lunch. हम क्या मैसेज लेंगे? She has lunch in a pub. ये मैसेज हमारे दिमाग को आना चाहिए इंग्लिश में. I like the puddings. She likes the puddings. What are puddings? I think it is time I should send you the photos, guys. I have to send you photos. Give me a second. Photos. Pubs. Okay. Copy image, and the image goes in your group. This is a pub. And what else I wanted to tell you yesterday? Cowboy boots. Remember? Black cowboy boots. Roast chicken as well. Right. Cowboy boots. Okay, there. Cowboy boots. And roast chicken. I told you don't eat your mobile phone. Roast chicken with a lot of vegetables. Me? No, I don't.
भाई एक चिकन कम पड़ जाए सब में तो मैंने दूसरा भी भेज दिया। ओके, मन से खाओ। ओके, नो प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी? पुडिंग्स, स्टिकी टॉफी पुडिंग, स्टिकी टॉफी पुडिंग। Sticky toffee pudding. I'll explain. Pudding means anything sweet. Pudding means anything sweet that you make at home. Not necessarily at means something that you eat after your meals. Puddings. A rasgulla is a pudding too. Dahi can be puddings too. Kheer can be puddings too. Anything sweet that you eat after your meals. You're not listening, guys. You're not listening. You're not listening. You're talking to each other. Don't talk to each other. Talk to me. Okay? Talk to me. Sticky toffee puddings. She likes sticky. Sticky means adjective, noun, verb. क्या है sticky? Adjective. ठीक है? Sticky describes something. A sticky substance. यानी कोई ऐसे चिपचिपा पदार्थ. All right? A sticky thing. Okay. Sticky toffee pudding. टॉफी क्या होता है? वो शुगर को कैरामलाइज करके बनाते हैं, उसको कहते हैं टॉफी। कैरामलाइज, when you melt sugar and it becomes brownish in color. Have you ever melted sugar? Sugar को melt किया है on high heat, on high flames, and it becomes brownish sticky substance. That is caramel. Okay, caramel बोलते हैं उसको. So if you look at the photos that I've shared, and you can also Google these things, by the way, and learn more if you want. We will carry on tomorrow. आज मैंने बहुत काम की चीजें बताई हैं, अगर देखा जाए तो आपके दिमाग में जो इंग्लिश के बारे में बचपन में जो लोगों ने कचरा डाला है उसको साफ करने का अच्छा कोशिश किया मैंने, कि इंग्लिश और हिंदी में कुछ सिमिलैरिटीज होंगे और कुछ फर्क भी होगा। ओके, एंड जहां सिमिलैरिटीज वहां मुश्किल नहीं, जहां फर्क है वहां बहुत सारा अंडरलाइन किया तुमने। किस तरह से किया है बताओ, थोड़ा समझाओ। हाँ, तो पढ़ते गए तो सारा अंडरलाइन कर दोगे तो फिर नहीं करने का फर्क क्या रहा? इस दुनिया में किसी के पास टीवी ना हो या सबके पास टीवी हो तो सब तो बराबर हो जाएंगे। तो किसके पास रहेगा टीवी तब तो वैल्यू है। तो जहां पर कुछ जगह अंडरलाइन किया, कुछ सोच के किया कि यहाँ पर करते हैं कुछ फायदा है, तो वैसे ही करो। ठीक है, सबको अंडरलाइन मत करो, खाली पढ़े इसलिए मत करो। पढ़ने पे कुछ उसमें मजा आया, कुछ लगा ऐसा तो करो अंडरलाइन, नो प्रॉब्लम। ये मुझे लग रहा है सारा अंडरलाइन लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? लग रहा है सारा का सारा। तो आप देखें, आप सब लोग हाइलाइटर ले लो प्लीज, बाय हाइलाइटर एंड हाईलाइट सर्टेन फ्रेजेस। जैसे हैव अ लॉन्ग बात दिया, हाईलाइट कर दिया। ओके, कुछ भी इस तरह की चीजें जो एक्स्ट्रा टेंशन जिसको चाहिए, हाईलाइट देम। प्लीज गेट अ हाइलाइटर एवरीबॉडी। I'll see you all tomorrow. Okay, bye bye everyone, take care. Bye bye. Bye bye.